माननीय राज्यपाल जी का स्वागत। तालियों के साथ में मेरा निवेदन रहेगा कि हम सभी माननीय राज्यपाल महोदय को आपका स्वागत करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डोभाल जी से मेरा निवेदन रहेगा, कृपया कर मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे द टॉन्स ब्रिज स्कूल और बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग फॉर डेफ चिल्ड्रन के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, कृपया कर आप भी आप लोग आगे आएँ। टॉन्स ब्रिज के स्टूडेंट्स से भी मेरा निवेदन रहेगा, कृपया कर आप लोग आगे स्थान अपना ग्रहण करें। माननीय, जैसा आप देख सकते हैं, द ऑनरेबल गवर्नर इज़ हियर विद अस। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के छात्राएं जो हैं, आप प्लीज़ आए। आपके जो टीचर्स हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को So we'll just start in a minute. हमारे साथ में यहाँ पर दो स्कूल, देहरादून शहर के दो स्कूल के छात्राएं, द टॉन्स ब्रिज स्कूल और बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग फॉर डेफ चिल्ड्रन, आप लोग मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हों। प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स का। To continue this further, I would like to formally once again a very, very warm welcome, sir, on the auspicious start today in this inaugural session, इस उद्घाटन सत्र में। ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आप हर वर्ष की भांति यहाँ पर अपना आशीर्वचन देने के लिए, हमें प्रेरित करने के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। टू प्रोसीड फर्दर, सर, आई हैव बीन टास्क्ड with the responsibility to
present a formal introduction about our Honorable Governor. And to start with, of course, there are so many dimensions to the personality of our Honorable Governor, sir. But from my standpoint, one of the things that I have observed, and so kindly allow me to share some of my own thoughts as well, is that the Honorable Governor is an institution builder. Of course, there is lots to be said, but I would like to start first with talking about this innate ability and this passion of the Honorable Governor to, and when it comes to institution building, I would also like to share a very, very topical and very relevant example which relates to the upliftment of the state universities in Uttarakhand. So as the Chancellor of the state government universities, Sir is taking an exceptionally and extremely a lot of interest in how to build up capacities at the highest levels, at the leadership levels of these universities. And as a resident, as a citizen, as a proud citizen of the state of Uttarakhand, sir, even at a personal level, I truly, genuinely acknowledge these efforts being made by you, sir. Most of us who are here at the Valley of Words, irrespective of our age and where we come from, have many, many ideas. And a lot of ideas are flowing and floating all the time. But here is a leader, here is a gentleman who has the ability to what I call connecting the dots and to be able to see the larger picture, to be able to conceptualize and to be able to take what we call a helicopter view and also to be able to carve out a vision. And this is what truly distinguishes Sir, and also a lot of the work that he's doing is relating to his experience, his ability of connecting, articulating these ideas, and then presenting this vision for the people of the state and, of course, for the people of the country. When we talk about communication, it is often understood or misunderstood that communication relates to speaking. But again, I think most of us know that the art of communication is not only speaking, but also to have the ability to be patient and listen carefully. And I have had the good fortune of having spent some time with Sir, and I have really noticed his interest in really listening to whoever it is that is talking to him. So, Sir, this is a remarkable human quality, and I think many of us here need to embrace this wonderful habit of yours. One thing is enthusiasm, but if we add one more word to it, it becomes infectious enthusiasm. We also talk about people having energy, but there's another kind of energy that can also energize other people. And here is again an example of someone who symbolizes infectious enthusiasm and energy that energizes others. Always eager to learn, always eager to absorb, to share, and known for his compassion, simplicity, and honesty is the Honorable Governor of Uttarakhand. I also wish to add that he has the ability, he has the skill, he has the temperament to straddle the words of, and especially when we talk about a state like Uttarakhand, he has the innate ability to straddle the world of tradition and technology, spirituality and science. He can deeply relate as much as with the practical and harsh realities of migration or distress migration in the state of Uttarakhand, and he's as much at ease talking about the principles of modern day management. So be it migration or be it management, be it tradition, be it technology, you are, Sir, at ease with all these issues. When it comes to Sir's distinguished military career, there is a lot to be said. I'm extremely sorry. I should have been more formal and should have mentioned right in the beginning that Sir has been awarded the Param Vishisht Seva Medal, PVSM, also the Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal and Vishisht Seva Medal. तो आपको जो है
अपने शौर्य और पराक्रम के लिए, जैसे मैंने कहा, PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल. आई विल बी वेरी हैप्पी. आई थिंक दिस रियली डिजर्व्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल. When it comes to Sir's military career, he has been the former Deputy Chief of the Army Staff. He's a well-known scholar on defense matters, having been at the Jawaharlal Nehru University, at the National Defense University in Washington, and the National Defense University in Taipei in Taiwan. He has represented the country on many, many occasions, held many talks, particularly on vexing border issues with China. He has been to Beijing, he's been to Shanghai, many other cities and towns in China. He's also visited Pakistan for talks on Siachen and other issues of national importance. As an adjunct general of the Indian Army, he has worked on human resource management, training, manpower policy and planning, recruitment, selection, motivation, morale, health, welfare, and many other issues related to the ex-servicemen during his various postings. So there is a lot to be said. If you wish to clap, please do not stop. Please continue. Sir has special attachment with soldiers, warriors, and martyrs. तो ये एक पृष्ठभूमि थी. वैसे तो मुझे लगता है हम सभी अधिकांश लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं इसी शहर से, इसी राज्य से हैं. हम सब भली भांति सर के से परिचित हैं, लेकिन कुछ नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा इस उद्घाटन सत्र, जो हमारा 7वां जो संस्करण है वैली ऑफ वर्ड्स का, उसके वेलकम एड्रेस के लिए जो सूत्रधार हैं, इसके कर्णधार हैं वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली 2023 के आदरणीय श्री संजीव चोपड़ा जी को. बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी. Good morning and a very warm wow to all of us, especially to our esteemed Governor, Lieutenant General Gurmeet Singh ji. A big round of applause for him, sir. And to our board member, Vice Chancellor Ajendra Dubal ji. Friends, it's always an honor to welcome all friends, all well-wishers, and all participants to Valley of Words. This is our 7th edition, and we are so glad that this is the 2nd time that Honorable Governor has graced us. But more than that, whenever we've gone to him, he's been, as Anup already said, absolutely energetic, absolutely infectious, absolutely enthusiastic, and let me add one more adjective, very, very affectionate to all those who want to propagate the word. So, I think we are very proud in Uttarakhand. Every state has a governor. I mean, you can't have a state without having a governor. But we are very blessed, sir, that we have you as a governor because governors like words are of all kinds. So we are very blessed that you are with us. I'll take this opportunity, sir, to brief you about what WOW does outside of Uttarakhand, because you're well aware of what we do in Uttarakhand, because you're a very regular and a very critical reader of Garhwal Post, our media partner. So whatever we do in Uttarakhand, you know. But I just wanted to share with you, sir, that with your blessings, we have taken WOW to different parts of the country by taking our knowledge verticals, the 8 knowledge verticals that we have. Our young adults knowledge vertical is being held these days at the Delhi College, Indore. So we have the participants from about 70 schools from 8 states which come to Delhi College, Indore to partake of writings for young adults. So we're very glad, sir, that our vertical for translations and for writings in non-fiction English is now being held annually at the Chennai International Center. We do it in collaboration with CIC. We've done a program this year, the Ministry of Culture, Auroville Foundation, they invited us to do a G20 literature meet at Auroville Foundation, which we thought was a great honor for the Valley of Words to go and curate a festival. And you'll be very glad to know, sir, that 12 young volunteers from Dehradun, they went to Auroville, we set up the stage, and we conducted the program at Auroville, which was, we thought, a great achievement for us, sir. Sir, our Hindi vertical we do at the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya at Haridwar, so that all authors get to the audience which is of their choice, because one of the challenges for a literature festival is not the big authors, but to get the right listener, to be able to connect the right book with the right author, and to connect the author and the book with the right audience. That is the real challenge for a festival curator. And so we are trying our level best to achieve it. Every year there's an improvement, and we hope that we'll continue this trajectory.
So there are two more things about WOW which I thought I'll share with you. One is, sir, that from this year we are partnering with the Rashtriya Indian Military College to have the national debate. And this is a debate that we have with students of Kendriya Vidyalayas, students of Jawahar Vidyalayas. This year, from this year, sir, the Government of India has also started Eklavya schools, which are schools in the tribal-dominated districts of the country. And we have Sainik schools, and you are a proud student of Sainik School, Kapurthala, sir. A big round of applause for that, because I come from Kapurthala, and he comes from Sainik School, and therefore there's a connect that we have of Sainik School, Kapurthala, and of course RIMC and Himjyoti School. So this time, sir, the subject of the debate was, the UN is dead, long live G20. That was something which inspired our students to come and talk about many things. So then we have had a partnership with the National Human Rights Commission, and we did the National College Debate with the Doon University. We called it the Gaura Devi National Debate, which was again sponsored by NHRC, and our own Justice Sudhanshu Dhulia was the chief guest for that occasion, sir. So, sir, this is how the value of words is trying to spread out. And one of the exhibitions that we've organized this year is Evam Vadati Pustakam. This was an exhibition which had been done at the Indian National Center. Dr. Shyam Saran, our foreign secretary, and Ms. Sudha Gopalakrishnan also, she's here. They both curated it. We have it with us, sir. We want you to take a small walk in that exhibition as well. Without much ado, because there's so much to be said, there's so much to be done, and there are books to be released, there are magazines to be launched. So I'll close for now, sir. A very warm welcome to you again, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और पुनः साहित्य, संगीत, शिक्षा, संस्कृति, नृत्य, नाटक, पर्यावरण, पत्रकारिता, भाषा, कला, कविता, इतिहास, अनुवाद और अन्य कई पहलुओं को छूते हुए शब्दों और विचारों की, संवादों की, विचारों की इस समागम में जो 7वां वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली है, माननीय राज्यपाल महोदय की जानकारी में भी लाना चाहेंगे कि इस उद्घाटन सत्र और समापन सत्र के अलावा 36 अन्य सत्रों का आयोजन आज और कल किया जा रहा है। इसमें 100 से ज़्यादा लेखक, हमारा सौभाग्य भी है, और हम सभी लेखकों का यहाँ पर, सभी आगुंतकों का, आप सभी का पुनः यहाँ पर इस मंच के माध्यम से स्वागत भी करते हैं। ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि आज और कल 12 सत्रों का आयोजन, 12 अलग अलग पुस्तकों का विमोचन होगा। तो ऐसी तमाम खूबियों को लेकर इस वर्ष के वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए इस सत्र में जो उद्घाटन सत्र है, सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम एक पुस्तक का विमोचन करवाएंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती अनीता भटनागर जैन मैम, आपका यहाँ पर स्वागत है। और आपको मंच पर आमंत्रित करने से पहले आपकी जो पुस्तक है गज्जू चलने लगा, तो पुस्तक का नाम भी जो है बड़ा रोचक है, गज्जू चलने लगा। मैम, आपको यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले मैं संक्षिप्त परिचय माननीय राज्यपाल महोदय को, मैम के बारे में और हमारे तमाम मेहमानों को मैं देना चाहूँगा। मैम जो हैं बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। आप अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। आपका जो रुझान है, वैसे तो आपके कई विषयों में आपका रुझान है, लेकिन आपका जो दिल से छूता हुआ आपका रुझान पर्यावरण के क्षेत्र में, और जब भी पर्यावरण की बात होती है उत्तराखंड में तो वैसे ही जो है पर्यावरण का एक बड़ा महत्व है। तो आपका जो बच्चों को लेकर, पर्यावरण को लेकर आपकी 60 से ज़्यादा जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, और विशेष तौर पर बच्चों को लेकर के जो है 6 लाख से ज़्यादा सर आपकी जो है किताबें पब्लिश हुई हैं, 16 भाषाओं में उनका अनुवाद हो चुका है। आपने एक बाल पर्यावरण वाहिनी का भी आपने गठन किया है, बड़ा उल्लेखनीय प्रयास मैम आपकी तरफ से, और जिसमें 1 लाख जो है बच्चों को जो है आपने अपनी इस बाल पर्यावरण वाहिनी में आपने अपने साथ में जोड़ा है। आपकी एक फिल्म आवर अर्थ आवर होम, ये भी एक बहुत बड़े गर्व और हर्ष की बात है कि यूनेस्को में जो है आपकी फिल्म वहाँ पर दिखाई गई है। और एक और व्यक्तिगत बात जो आपके बारे में है कि आप और संजीव सर एक ही बैच के हैं, 1985 बैच ऑफ द IAS। मैम जो हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उत्तर प्रदेश सरकार में एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। मैम, आपका इस मंच में वैली अवार्ड्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप कृपया कर मंच पर अपना स्थान लें और 2 या 3 मिनट में कृपया कर आप अपनी पुस्तक के बारे में हम सभी को जानकारी दें, हमें लाभान्वित करें।
परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, मेरे विशिष्ट बैचमेट संजीव जी, राजेंद्र डोबरियाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी, इतने विशिष्ट लेखक लेखिकाएं और प्यारे बच्चों और मीडिया के मित्रों, आज का दिन मेरे लिए अविस्मरणीय है। क्यों? क्योंकि मेरी ज़्यादातर कहानियाँ उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में होती हैं और जब भी मुझे कहानी लिखनी होती है तो मैं उत्तराखंड ही आती हूँ, कहीं आकर के 2 दिन के लिए बंद हो जाती हूँ। गज्जू चलने लगा, क्योंकि मैं विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखती हूँ, तो गज्जू आप समझ गए होंगे कि हाथी का छोटा सा बेबी है। तो ये जो कहानी है, कहानी की जो मुख्य अवधारणा है कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में केवल यही पृथ्वी हमारा घर है, हमारी पृथ्वी हमारा घर, और साथ ही साथ ये पृथ्वी हम सब की है, पशु पक्षी जीव जंतु पौधे और हाँ मनुष्य की भी, बल्कि मनुष्य प्रायः ये समझता है कि ये केवल हमारी है। और जिन सब की भी ये पृथ्वी है, अगर इनमें से एक पर भी प्रभाव पड़ता है तो जाहिर बात है कि इस सृष्टि पर खतरा मंडराता है, जो कि मंडरा रहा है। तो ये जो कहानी है ये पशु पक्षियों और इंसान के प्रेम की है, साथ में आपस कैसे रह सकते हैं, और विशेष रूप से कि पशु पक्षियों के अपने परिवार हैं, अपने रिश्ते हैं, अपने मित्र भी हैं, अपने घर हैं, और साथ ही साथ उनकी अपनी आकांक्षाएं और सपने हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भी उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये कहानी कतरनिया घाट में, जो कि नेपाल की सीमा के पास उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि में लिखी गई है। और गज्जू जो एक छोटा सा हाथी है, वो नो मैन्स लैंड में चला जाता है। तो नो मैन्स लैंड तो आदमी नहीं जाए, लेकिन गज्जू चला जाता है गलती से, और कैसे एक दुर्घटना में उसके पैर में चोट लग जाती है और एक पैर काटना पड़ता है। लेकिन कैसे वो सपने देखता है कि वो दोबारा चलेगा, और कैसे एक डीएफओ उसकी मदद करते हैं और गज्जू दोबारा चलने लगा। और साथ ही साथ एक समस्या जो कि हो रही है कि जंगल कट रहे हैं, पशु पक्षियों के पास घर नहीं रह जा रहे हैं, उनके शिकार के लिए भी जानवर नहीं हैं। तो जो बूढ़े हो जाते हैं पशु, उनमें से कई मैन ईटर बन जाते हैं, पर उसका भी क्या निदान है। तो ये पशु पक्षियों की समस्याएं और कैसे इंसान और पशु पक्षी पेड़ पौधे आपस में प्रेम से रहें, यही कहानी है गज्जू चलने लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ इस विमोचन के लिए, और एक स्लोगन से अपनी बात अंत करती हूँ जो बाल पर्यावरण वाहिनी के लिए बनाया था, एक सृष्टि एक जीवन, एक सृष्टि एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। धन्यवाद। Big clap. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला जो परिचय देना चाहूँगा, जो दूसरी पुस्तक का विमोचन माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से होगा, वो सुशासन को लेकर के है, देश में सुशासन। और किताब का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड इनोवेशन। तो ये पुस्तक संयुक्त तौर से उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 2 युवा आईएएस ऑफिसर्स के माध्यम से लिखी गई है। मंच पर आमंत्रित करने से पहले मैं आपको आप दोनों का परिचय माननीय राज्यपाल महोदय के साथ में और अन्य आप सभी लोगों के साथ में आपका परिचय देना चाहूँगा। सर्वप्रथम श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव हमारे मध्य में यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। आप ही के साथ में डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। श्रीमती ईवा आशीष श्रीवास्तव 2010 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। पूर्व में आप टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़े ज़िले में आप जिला
जिलाधिकारी रह चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आप नेशनल अवार्ड विनर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उत्तराखंड राज्य के एक्सेलेंस एंड गुड गवर्नेंस के सम्मान से भी जो है आपको नवाजा गया है। आपके अलग अलग सुशासन के संदर्भ में अलग अलग विषयों में आप रुचि रखती हैं। उदाहरण के तौर पर सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रामीण पर्यटन, रूरल टूरिज्म, जेंडर इश्यूज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपदा प्रबंधन का, और महिलाओं के बच्चों के मुद्दों को लेकर के। वर्तमान में आप जो जनगणना यानी सेंसस ऑपरेशंस उत्तराखंड राज्य में आप उसकी डायरेक्टर हैं। भारत सरकार की तरफ से तो ये आप महत्वपूर्ण कार्यभार आप संभाल रही हैं। ईवा जी, आपका पुनः यहाँ पर स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मैं परिचय देना चाहूँगा, एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का। आशीष जी, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। आप 2011 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं और इससे पूर्व राज्य के 13 जिलों में से 3 जिलों में आप जिलाधिकारी के कार्य का आप बेहतरीन निर्वहन कर चुके हैं। देहरादून जिला, ऊधम सिंह नगर जिला और सीमांत जिला उत्तरकाशी, वहाँ पर के आप जिलाधिकारी रहे हैं। आपको नेशनल गवर्नेंस अवार्ड से 2 बार जो है आप सम्मानित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है एक्सीलेंस एंड गुड गवर्नेंस, वो 4 बार जो है आप उस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। 30 अंतर्राष्ट्रीय पेपर्स जो हैं आप लिख चुके हैं। और ये हम सभी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़े हर्ष की बात है। जो आपकी पुस्तक है उसके बारे में स्वयं आप लोग जानकारी देंगे, माननीय राज्यपाल महोदय उसका विमोचन करेंगे। और एक बड़े प्रासंगिक विषय पे, आज जब देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो चुके हैं, तो जो सिविल सर्वेंट्स का योगदान है, सिविल सर्वेंट्स क्या सोचते हैं, और जब देश आगे बढ़ रहा है तो उन तमाम मसलों को लेकर के आप लोगों की पुस्तक है। अभी हाल ही में आपको जॉइंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप वो भी आपको मिली है, और उसके लिए आप मास्टर्स की पढ़ाई करेंगे। और इंस्टीट्यूट का भी भारी भरकम इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट स्टडीज़ ऑफ इरास्मस यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स के रॉटरडैम में। तो आशीष जी, बेहतरीन आपका जो ये आपकी इतनी उपलब्धियां। वर्तमान में आप एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड साइंस टेक्नोलॉजी उत्तराखंड सरकार में हैं। बड़ी विनम्रता के साथ में मैं आप दोनों का यहाँ पर पुनः स्वागत करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया कर मंच पर आप अपना स्थान लें। माननीय श्री राज्यपाल महोदय, आदरणीय डॉक्टर संजीव चोपड़ा, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र भाल, श्रीमती रश्मि चोपड़ा, श्रीमती अनीता जैन भटनागर, सम्मानित अतिथियों, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज श्री राज्यपाल महोदय जैसी विभूति के कर कमलों से इस किताब का शुभारंभ हो रहा है, जो अपने आप में गुड गवर्नेंस के लिए जिस दिन से उत्तराखंड में आए हैं वो कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं। और उसी का एक आउटकम है कि हमने ये किताब लिखी है। और संजीव चोपड़ा सर का भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस अवसर पर हमारी किताब के शुभारंभ के लिए चुना है। सर, ये किताब क्यों लिखी गई है, इस किताब के अंदर क्या है, उसको सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जी के एक कोट से बताना चाहूँगा। और इसी प्रधानमंत्री जी के कोट से ये किताब की शुरुआत भी होती है। एंड आई कोट, इंडिया इज़ अंडरगोइंग प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन. We are today the fastest growing economy in the world. We want the Indian economy to be driven by smart and sustainable cities, robust farm sector, vibrant manufacturing and dynamic service sector, and its energies to run on the world-class network of rail, road, airport and digital connectivity. और इन्हीं आई अनकोट और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ सर ये किताब 3 भागों में है: सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस किताब को अपने कर कमलों द्वारा आज शुभारंभ करने के लिए।
मैं अनुरोध करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी और ईवा जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया कर मंच की तरफ श्रीमती रश्मि चोपड़ा जी, श्रीमती ज्योति धवन जी, अगर कृपया कर आप मंच पर तुरंत यहाँ पर आने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय से अब हम निवेदन करेंगे कि द बुक रिव्यू जो पब्लिकेशन है और शब्दावली स्मारिका का कृपया कर आपके कर कमलों से हम विमोचन कराना चाहेंगे। ज्योति जी और रश्मि जी कृपया कर। द बुक रिव्यू और शब्दावली स्मारिका, वैली ऑफ वर्ड्स वाव शब्दावली 2023, शब्दावली स्मारिका और द बुक रिव्यू का विमोचन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती रश्मि चोपड़ा, श्रीमती ज्योति धवन जी और अन्य तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है वैली ऑफ वर्ड्स के आयोजन में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, दोस्तों, अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बेहद विनम्रता के साथ में, शालीनता के साथ में, आदर के साथ में ये मेरा परम सौभाग्य है कि वैली ऑफ वर्ड्स वाव के 7वें संस्करण में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कृपया कर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें। ये जो शब्द है ना वाव, न जाने क्यों इसमें एक अलग ही वाइब्रेशन हैं। आपने तो देखा है सोशल मीडिया में किस प्रकार ये शब्द वाव वाव ट्रेंड कर रहा है। सच कहूं तो ये जो शब्द होता है ना, अक्सर मुझको लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, तो मैं कहता हूं कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं। कहते हैं कि किस लिए जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि शब्द सुनने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि शब्द अपने आप में जो ज्ञान, विद्या, विजडम और आपको मार्ग देता है वो सबसे बड़ा मार्ग है। मैं तो इस शब्द को WORD को ही इतना बड़ा मानता हूं कि जब मैं इनोसेंस से WORD को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो OR है उससे ऐसा लगता है कि हर एक शब्द में आपको चूज करना पड़ता है कि इस वैली का मैं ये वर्ड लूं कि वो वर्ड लूं। और जब मैं वर्ड के अंदर में D से पहले L को लगाता हूं तो एकदम संसार, वर्ल्ड बन जाता है। जब मैं वर्ड के पहले S को लगाता हूं तो ये स्वॉर्ड एक सॉफ्ट पावर से हार्ड पावर बन जाती है। ये वर्ड में इतनी शक्ति है तो वैली ऑफ वर्ड्स में क्या शक्ति होगी। पिछले साल जब यही कार्यक्रम था तो स्टेज उस तरफ में था और इस बार स्टेज इस तरफ में है। इसका मतलब ये है कि हर एक चीज को अलग नजरिए से, अलग दृष्टि से, अलग पर्सपेक्टिव से, अलग एंगल से देखना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू चूजन
yet another direction to look at the world. ये पिछली बार भी जब मैं आया था तो वैली ऑफ वर्ड में बिल्कुल अलग ही आनंद आया था, और ये जो शुभ शुभ क्षण है, पल है, ये 2 दिन का कार्यक्रम का पहला कदम है। तो ऐसा लगता है कि हम सब की सभ्यता में जो गॉड लॉर्ड ऑफ इनिशिएशन है, गणेश जी, जो हमारे शिव जी के पुत्र हैं, उनको याद करना, स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द इनिशिएशन। तो वो जो मंत्र है शिव जी का, जिसमें कहते हैं ओम नमस्ते गणपत्याय तत्मेव केवलम कर्त्यासे कर तत्मेव केवलम धर्त्यासे तत्मेव केवलम हर्त्यासे। ओम नमो नमः। कर्त्य, धर्ता और हर्ता। I'm definite that Lord Ganesha will bless this beautiful thought of creating a valley of word and have all these vibrations coming out of it. कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो हिंदी का भी शब्द आपने प्रयोग किया है, शब्द, और उसके साथ में वैली को लगाया है, वो शब्द वाली बन गई है। लगता है संस्कृत और हिंदी में भी वो आपस में वो मिलाप है। सच कहूं तो जो आपने कार्यक्रम का पूरी प्लानिंग की है, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि 7 सालों के बाद इज द 7th सेशन, और इसको सस्टेन करना, मेंटेन करना, इसकी कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट द एंटायर फैमिली ऑफ वैली ऑफ वर्ड्स टू टेक इट टू द 7th सेशन। वैसे कहते हैं कि 7th हेवन, एंड ऑनेस्टली यू रीच दैट लेवल ऑफ 7th हेवन। आज आपके पास सेंचुरी है ऑथर्स की, आपके पास आपने बहुत सुंदर एक प्रणाली, एक प्रथा शुरू की है, एक परंपरा शुरू की है, जिसके अंदर में यू गिव अवार्ड्स, एंड दिस टाइम यू आर गिविंग इट टू द 8 विनर्स। आपने 12 बुक लॉन्चेस का प्लान किया है। कभी कभी लगता है ऐसा तो नहीं कि मैंने पगड़ी डाली है इसलिए 12 है। लेकिन 12 शब्द, 12 फिगर इतना तगड़ा है, उस समय के ऊपर में आवर, मिनट एंड सेकंड सब मिलकर जो महादेव, महाकाल को नमस्कार करते हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग है। आपने जिस प्रकार से एग्जीबिशन का प्लान किया है, इसके अंदर में ना केवल किताबें, उसके अलावा आर्ट, कल्चर, नृत्य, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कृत। मुझे इतनी खुशी है कि एक तरफ तो संस्कृत देव यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ दुनिया के और भारत के, उत्तराखंड के सबसे अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, दे ऑल कंबाइन, बिकॉज सबसे शिखर में है सोच, विचार और धारणा, थॉट, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। And this is through the blessing of the words and words that we communicate with each other. आज बहुत सुंदर बात कही आपने। सचमुच वैली ऑफ वर्ड इज वन ऑफ इट्स काइंड। इसमें कोई प्रॉफिट पे नजर नहीं है। ये सब वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, सभी ज्ञान और विद्या, विजडम के क्षेत्र में सेवक का कार्य करना चाहते हैं। आज जो ये परिवार है, इस परिवार के अंदर में 1000 से ज्यादा ऑथर्स, इस परिवार में 10,000 से ज्यादा डिबेट और 365 सेमिनार किए हैं।
अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। मुझे बहुत खुशी है कि ये परिवार फल फूल रहा है। और सबसे प्यारा तो मुझे लगता है, मैं दिमाग में सोचता हूं कि किसने ये शब्द का खोज की होगी, वैल्यू ऑफ वर्ड्स। रश्मि जी, किशोर जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सुंदर सोच विचार किया और इस संस्था के बारे में इतना प्यारा नाम दिया। मैं संजीव जी को बहुत बहुत आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, इमेंस कॉम्प्लीमेंट कि आपने इस संस्था को बनाया है। जब मैं उनकी पर्सनालिटी को देखता हूँ, उनकी अचीवमेंट्स को देखता हूँ, तो शिवजी के त्रिशूल की तरह MBA भी किया है, PhD भी की है, LLB किया है, तो छोड़ा क्या है वैली के अंदर में। आई एम वेरी हैप्पी दैट इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस these steps are being taken. And इन्होंने एक किताब लिखी थी 10,000 करोड़ पर्सनल मेमोइर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। उसको प्रभु ने, वाहिगुरु ने और शिव जी ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, क्योंकि आज का जो पल है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्लान तो श्रद्धा से 2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 लाख करोड़ का प्लान था, लेकिन प्रभु ने उसको 3.5 लाख करोड़ में लिखे गए। 44,000 करोड़ का ग्राउंडिंग किया है। ऐसा लगता है कि पूरी मानवता, पूरा विश्व वांट्स टू एंजॉय ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, जो अर्थव्यवस्था के मार्ग के ऊपर में हम चल पड़े हैं। पहले 10वें पायदान पर, फिर 5वें पायदान पर 4 ट्रिलियन का बेंचमार्क, और अभी नजर है कुछ ही समय में पूरे विश्व में 3रे पायदान पे। और मुझे आई एम डेफिनेट अबाउट इट दैट वी आर गोइंग टू बी नंबर 1 इन द अर्थव्यवस्था। बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं, ये जो 2023 साल है, वर्ष है, इसके अंदर में G20 की 3 मीटिंग्स की, जिन्होंने हमको पूरे ग्लोब के साथ में मिलाया, हमारे लोकल प्रोडक्ट्स और ग्लोबल कंज्यूमरिज्म का रास्ता खोला है। और इस G20 की मीटिंग में सबसे अद्भुत क्या था? सबसे अद्भुत था कि हमारे परिवार के हर एक सदस्य ने इसके अंदर में हिस्सा लिया। उसके बाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये 28 नवंबर को, और ये वही 28 नवंबर है जिस दिन प्रभु ने 17 दिन 400 घंटे 41 वर्कर्स का वो जो चैलेंज था ना, सिलक्यारा का चैलेंज, उसका सक्सेस का मार्ग खोला था। आपने तो देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर में क्या उत्साह, इंटरनेशनल, नेशनल, हर एक जन के अंदर में ये है कि किस प्रकार उत्तराखंड के विकास, भारत के विकास, भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का किस प्रकार उसमें योगदान दिया जाए। और सबसे खुशी तो ये है, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना से कहा था कि 5 करोड़ टूरिस्ट जो उत्तराखंड में आते हैं, वो अपना खर्चे का 5% यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स के लिए खर्चा करें। लेकिन इस बार तो एक और बहुत सुंदर उन्होंने पूरी हर भारतीय को कहा कि यू मस्ट वेड इन इंडिया, वेड इन उत्तराखंड। और उस शुभ दिन के अंदर में आप प्रभु की भूमि में आए, देवभूमि में आए। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कदम, हर एक सोच हमको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन। मैं क्यों कह रहा हूं इन सब बातों के बारे में? क्योंकि जो बदला है वो सोच विचार और धारणा है। जो बदला है वो
transformation, modernization and our steps towards being 21st century का तीसरा दशक जो उत्तराखंड है उसके बारे में बदला है. Why I am saying all this to each one of you? Because आपके अंदर में वो शक्ति है कि आप इन सब बातों को अंकित कर सकते हैं. You can document this. This can be a beautiful subject for your book, for your research, for your magazine, for your expression. और एक बात पक्की है, ये जो एक्सप्रेशन होता है this expression has got to be from soul to soul. एक आत्मा दूसरी आत्मा से शब्दों के जरिए किस प्रकार बात करती है, दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतना सुंदर समय है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, मॉडर्नाइजेशन का, अपने आप को एक दूसरे स्तर पर ले जाने का. यू मस्ट इंजॉय राइटिंग. कभी कभी ऐसा लगता है ये जो शब्द है ना राइट, WRITE, आप ई को हटा दें तो ऐसा लगता है दिस इज माय रिट. रिट पिटीशन होता है ना लीगल टर्म्स के अंदर में, उसी प्रकार की मैंने लिख दिया और उसी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से लिखिए, उसी भावना और प्रेरणा से लिखिए. अक्सर मेरी वाइफ बोलती है जब मैं ये दो शब्द इस्तेमाल करता हूं, भावना, प्रेरणा, श्रद्धा, तो मेरे को कहती है कि ए कौन है? ए भावना कौन है? ए प्रेरणा कौन है? पता नहीं कौन है, बट ये हमको आत्मा से आत्मा को मिलाती है. मैं सचमुच आज बहुत खुश हूं कि वैली ऑफ वर्ड्स में एक ऐसा उत्साह है, ऐसा प्राइड है, ऐसी इंस्पिरेशन है कि वी विल टेक आवरसेल्फ कलेक्टिवली मानवता के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, विद्या, ज्ञान, विजडम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में, विल टेक आवरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल. मैं इस बात की मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो चिंतन, मंथन, डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग, संवाद जो यहां होगा, उसमें से जो अमृत निकलेगा ना, वो प्रभु के आशीर्वाद से हमको अवश्य ही एक 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को उस तरफ लेके जाएगा. आपने देखा है कि हमारे घर देहरादून के अंदर में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है. सड़कें, दीवारें, पेंटिंग्स, एक उत्साह, एक अलग ही एक वाइब्रेशंस आ रही है. जिस प्रकार G20 से ये बदलाव शुरू हुआ, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसके बाद में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में जिस प्रकार से हमने कलेक्टिवली सबने सहयोग के साथ में जिस प्रकार कार्य किया, ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि ईच वन ऑफ अस वी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन, सस्टेन एंड अपग्रेड व्हाट वी हैव अचीव्ड. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों की ताकत से, आज बहुत सुंदर दिन है, आज विजय दिवस है. आज सबसे पहले मैं शौर्य स्थल में गया और 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के उन मार्टियर्स को, उन योद्धाओं को, उन सैनिकों को पेड द फ्लोरल ट्रिब्यूट और उनके साहस, शौर्य और पराक्रम से अपने आप को इंस्पायर किया. आपको मालूम है कि 1971 was the defining and decisive military victory. और ऐसी विक्ट्री
जिसने एक देश के तो दो टुकड़े कर दिए और एक देश को जन्म दिया। ये है भारत का लेवल। माई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। हर भारतीय को प्रभु ने, वाहेगुरु ने, शिव जी ने, प्रभु और ब्रह्मांड के निर्माता और कार्य को प्रबंधन जो करते हैं, ही इज गिवन स्पेशल ब्लेसिंग टू एवरी इंडियन। प्लीज अंडरस्टैंड योर सेल्फ वर्थ। और मुझे लगता है ये जो वैल्यू ऑफ वर्ड में वर्ड है ना, WORD, ये उसी फैमिली का है। यहां से WOR से वर्क, कर्म, कार्य, वर्शिप, पूजा अर्चना, वर्थ, हम चीज क्या है, व्हाट इज द वर्थ, हमारा सेल्फ वर्थ क्या है, इसी वैली से ये उगता है ये पॉइंट। आज मैं आई वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड व्हेन वी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ राष्ट्रीय गान जो हमारे बच्चों ने गाया। जिस प्रकार उन्होंने अपने पूरे बदन से एक वाइब्रेशंस दी, जिस प्रकार से उन्होंने एक एक शब्द को फील किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक हमको अलग ही राष्ट्रीय गान का रूप पेश किया, तो ये सब मिलाकर सीधा आत्मा के ऊपर में एक अलग ही इंस्पायर किया है। I would like to compliment, I want to request each one of you to clap for these people. आपको मालूम है कि इनकी भाषा में जब आप ऐसे करते हैं तो this means appreciation. Let's do this for that. मैंने अपनी यूनिट में हमारे एक बच्चा था who was also deaf and dumb, तो मैंने भी ये भाषा उससे बात करने के लिए, संवाद के लिए सीखी थी। इसमें आई, फिर वन वर्ड L, O, V, E, दूसरा वर्ड एंड Y, O, U। मैं आप सबको आई लव यू कन्वे करना चाह रहा हूं। मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, बहुत सुंदर स्क्रिप्ट लिखा था, 5 पेज का स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस परिवार से स्क्रिप्ट नहीं, लेट द आत्मा स्पीक। मेरी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट ये है, अपनी आत्मा से लिखिए, इस ब्रह्मांड के लिए लिखिए, इस मैनकाइंड के लिखिए, इस राष्ट्र के लिए लिखिए, इस समाज के लिए लिखिए, इस जनहित के लिए लिखिए। मेरी आपसे अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप हमको हमारे भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति और असली इतिहास से जोड़िए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लू है, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब से हमको जोड़िए, क्योंकि आपके हाथ में जो शक्ति है ना, वो ऋठ की शक्ति है। मैंने कह दिया तो कह दिया। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सर, आपके आशीर्वचन के लिए उसे हम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं सर। और जो आपने आज हमें प्रेरणा दी है अगले वैली ऑफ वर्ड्स के लिए, 8वें वैली ऑफ वर्ड्स के लिए, और जो भावनाओं को आपने हमें जो संबल दिया है उसके लिए मैं सभी की तरफ से, जो निश्चित तौर पर हम सभी
जानते हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को बड़ा बढ़िया लग रहा है कि आप लोग अपना सर हिला रहे हैं। तो सर यहाँ से सभी की तरफ से जो है एक जो ऊर्जा का संचार हुआ है वो भी सर हिलाने से जो है वो संदेश हमें सामने आ रहा है, तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपकी बारीक और पैनी नज़र है कि पिछले वर्ष, जो आप में से कई लोग यहाँ रहे होंगे, तो जो पिछले वर्ष का जो हमारा वैल्यू अवार्ड्स था उसका मंच वहाँ था, इस बार का मंच यहाँ था। तो सर ने कहा ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन सर ने अपने दिल से जो है इस बात को बोला है। सर तो बहुत बेहतरीन, और राष्ट्र निर्माण से लेकर साहित्य और सभ्यता से लेकर आई लव यू तक के जो आपके जो संदेश हैं उन्होंने निश्चित तौर पर सर हम सभी का दिल छुआ है। और हम यही सदैव कामना करेंगे कि हर वर्ष जो है हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में, क्योंकि समय की बाध्यता है, सर मंच के माध्यम से वैल्यू अवार्ड्स के समस्त आयोजक समूह की तरफ से, संजीव सर की तरफ से, सभी स्वयंसेवकों की तरफ से मैं आपका सर विनम्र अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। और जाने से पहले मैं फिर एक बार पुनः अपने छात्र छात्राओं को जो हमारे द टॉन्स ब्रिज स्कूल के हैं और बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के हैं, कृपया कर एक बार फिर से आप लोग आएँ और राष्ट्रगान जो है हमें अपने साथ में प्रस्तुत करें। जब तक आप यहाँ आते हैं, एक माननीय राज्यपाल महोदय को एक हम वैल्यू अवार्ड्स की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भी देना चाहेंगे। तो आप मोमेंटो, सर का मोमेंटो जो है, प्लीज़ आप लोग मोमेंटो लेकर के आएँ। तब तक हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। मेरा वॉलंटियर से निवेदन रहेगा, आप लोग राष्ट्रगान की शुरुआत कर सकते हैं।
चलो V at wow.